Okay, so we'll again continue from this question. Okay, but before taking this question, let me again quickly go through all the formulas on this regression topic. Okay, so first tell me, just 1 minute, let me take a pen. So first tell me what is the regression line? Regression line y on x. Tell me this formula. Yes, tell me what is the regression line y on x, and then we'll also discuss the regression line x on y. Tell me the formula. Bolo. What is regression line y on x? What is the in general formula? Y minus y bar Y equals bar to is equal to byx into x minus x bar. minus x bar. This is the in general formula, and you can simplify this. Okay, simplified form. What is the simplified form? Y is equal to b by x into x plus constant, है ना? Where c is equal to, you can find that value. What is c? Where the c is equal to uh, y bar minus b by x into x bar. Okay, this is some constant. Okay, so this is the simplified form of your regression line y on x. तो जब आप y on x लाइन को या y इक्वल टू आप लिखते हो, the coefficient of x is nothing but the regression coefficient, and this is called as where this b by x, it is equal to, how you define b by x, or what is the value of b by x? What is the slope? R into sigma y upon sigma x, and if you simplify this, if you replace r by the covariance by its actual definition, sigma x into sigma y into this sigma y upon sigma x, so it is equal to the covariance upon, yes, sigma x square, and this is also called as, regression coefficient, and there is one more name, slope of the line y on x. Okay, so this is all about the regression line y on x. In a similar way, you can write it for the regression line x on y. So tell me fast, what is the equation? X minus x bar equals X to minus bxy x bar times equal to y minus y bar. bxy, y minus yy. Very good. And again, if you simplify this, simplified form is x is equal to bxy into y plus c, and in this case your c is x bar minus bxy into y bar. Okay, and in this case your bxy is equal to, in general formula is this, and if you simplify this, it means if you put the value of r here, covariance of xy upon sigma x sigma y, then it gets simplified into covariance upon what? Yes, what is the denominator after simplification? y on x में नीचे x आता है, मतलब y के इक्वेशन में नीचे x आता है, तो x के इक्वेशन में नीचे y, Sigma y square. तो आप डायरेक्टली ये याद रखो. ओके, इट सेव्स योर टाइम, हमेशा इतना कैलकुलेट करने से आने की भी जरूरत नहीं है. दिस इज अगेन कॉल्ड एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट. इतना ही बस याद रखना है, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्लोप ऑफ दिस लाइन एक्स ऑन वाई. ओके, लेट मी जस्ट, ये रिवाइज करने के लिए अच्छा होगा. जस्ट 1 मिनट. आपको ये पीपीटी में प्रोवाइड करता हूँ. ओके, लेट मी डिलीट फ्रॉम हियर. ठीक है. So from this single slide also you can revise the both regression lines. Okay, now let me quickly explain this question. We already completed this in the last session. The regression lines are given: 8x minus 10y plus 66 equal to 0 and 40x minus 18y plus equal to 214. Also we have given the variance of x.
Okay, so what is given? Variance of x is equal to 9. Then what is the standard deviation of x then? Yes, it is equal to what? If variance of x is 9, what is the standard deviation of x? Root of 9. Root of 9, and so that will be 3. Okay, so what is our first question? Also we have given the regression lines. 8x minus 10y is equal to say minus 66, and 40x minus 18y is equal to 214. What are these? These are the regression lines. आपके पास बस इतनी इंफॉर्मेशन है, बट हियर वी डोंट नो which line is regression line. Means there are two lines, so one line must be y on x and one line must be x on y. तो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम क्या है? Here we don't know which line is x on y and which line is y on x. So that we have to identify using कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. आर वैल्यू आपको दोनों केसेस में कैलकुलेट करनी है. ओके, एंड उससे आपको समझ में आ जाएगा, उनमें से एक केस आपकी रॉन्ग हो जाएगी और एक केस आपकी करेक्ट आ जाएगी. सो इन दैट वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिग्रेशन लाइंस. ओके, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट सॉल्व दिस फर्स्ट पार्ट. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. मींस एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करना है. कैसे करोगे? हाउ यू फाइंड एक्स बार एंड वाई बार फ्रॉम द रिग्रेशन लाइंस? यस, how you find x bar and y bar from the regression lines. So what is the relation between the regression lines and mean values? Tell me fast. बोलो क्या रिलेशन है इन दोनों में? What is that statement? So they satisfy this equation. Yes. So remember this. This is very important statement that the point x bar y bar satisfies the regression lines. इस पे MCQs आने वाले. Satisfies the regression lines, and this implies that the 8x bar minus 10y bar is equal to minus 66 and 40x bar minus 18y bar is equal to 214. So from that you can calculate your x bar and y bar. Okay, you can use calc and you can find these values. Okay, if you know please tell me these values. या आप इस पे भी वर्कआउट कर सकते हो, आप calc से ही कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. सो टेल मी द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अंडर रिग्रेशन लाइन. सी हर एक फॉर्मूला हर एक टॉपिक में अलग अलग है. एक्चुअल फॉर्मूला रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन का है. ठीक है, बट व्हेन वी कंसीडर दैट सेम टॉपिक इन रिग्रेशन केस और रिग्रेशन टॉपिक, तो उस केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आर अंडर रिग्रेशन पार्ट? Yes, tell me the formula of coefficient of correlation in regression. Plus minus root of by Plus x or into minus under root of bxy into byx. Okay, तो यहीं पे आपको समझ में आ जाता है कि to find the value of r using regression you have to identify bxy means the regression coefficient of the line x on y, है ना? This is what the coefficient of x on y. This is what the coefficient of or slope of the y on x. ठीक है, and for that आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों में से कौन सी लाइन आपकी x on y की लाइन है और कौन सी लाइन y on x की है. तो उसके लिए आपको मैंने बोला कि आपको दो केसेस करने है ना. सो लेट मी कंसिडर योर फर्स्ट केस. आप अपने हिसाब से लिख सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो कंसिडर द फर्स्ट केस एंड कंसिडर दी सेकंड केस. ठीक है, दो सेपरेट केसेस करो. फर्स्ट केस में क्या एज्यूम करो? एज्यूम दिस द फर्स्ट इक्वेशन एज y on x एंड सेकंड इक्वेशन एज x on y. ओके, फर्स्ट केस मेरी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन इज y on x एंड सेकंड इक्वेशन इज x on y. सो लेट मी राइट इट दैट. y on x मतलब y इक्वल टू लिखना है. सो y इज इक्वल टू 8/10 8/10 what x plus 66/10 and write down second equation as x is equal to, so it is 18/40 y plus 214/40. correct है? Okay, this is your first case. and what is your second case? सेकंड केस में आपको क्या करना है? रिवर्स लिखना है बस.
means now your first equation is x on y and your second equation is y on x. Okay, so x on y means x is equal to बोलो 10 by 8 Y minus minus 66 66 by by 10 and y is equal to 40 by 18x 40 by 18 x minus 214 by 18. ठीक है, डन. Okay, now so what is the slope of first line means b by x. फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है 8 by 10. सेकंड लाइन का स्लोप क्या है बी एक्स वाई इज 18 by 40. इन अ सिमिलर वे फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है बी एक्स वाई इज 10 by 8 एंड सेकंड लाइन का स्लोप क्या है बी वाई एक्स इज इक्वल टू 40 by 18. चेक करो दोनों केसेस में आर कैलकुलेट करो, आर इन फर्स्ट केस एंड आर इन सेकंड केस, और मुझे बोलो कौन सी केस आपकी करेक्ट है. अभी यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए. कैलकुलेट आर इन बोथ केसेस. बोलो कैलकुलेट करो और मुझे बोलो. आई विल डिलीट दिस पार्ट. कैलकुलेट आर इन बोथ केसेस. बस स्क्वायर रूट में दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है. डू इट फास्ट. इतना टाइम नहीं, ऑलरेडी हमारा सिलेबस पीछे जा रहा है. यस, फर्स्ट केस में आर की वैल्यू बोलो और सेकंड केस में आर की वैल्यू बोलो जल्दी. So for first 0.6. क्या है 0.6. 0.6 एंड व्हाट इज इन सेकंड 1 पॉइंट समथिंग आया. हाँ, क्या है सेकंड में 1.67. 1.67. ओके, एंड सिंस बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव इसलिए दोनों केसेस में पॉजिटिव पॉजिटिव कंसिडर किया. वो भी रिजल्ट आपको पता ही, बोथ आर नेगेटिव देन यू हैव टू कंसीडर माइनस वैल्यू. ओके, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है द रेंज ऑफ आर इज फ्रॉम -1 to 1. सो यू हैव टू डिलीट दिस सेकंड केस मींस दिस whole calculation is wrong. Okay, so the case 1 is correct. Okay, so you have to consider all the calculation of case 1 only, है ना. and what is value of r is equal to 0.6. डन, ये भी हो गया. लास्ट स्टेटमेंट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, मतलब आपको सिग्मा y कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यूज करना है, कोई भी एक यूज करो. सो वी हैव गिवन b by x which is equal to r sigma y upon sigma x. b by x is given which is 8 by 10. यह हमने वो कैलकुलेट किया है. आर की वैल्यू हमें पता ही है 0.6. सिग्मा एक्स इज गिवन 3 ना, सिग्मा एक्स इज गिवन. सो सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज 3. सो फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट सिग्मा वाई. ठीक है, तो इतना बस याद रखो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते समय आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला यूज करना है. ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में से 2 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे. इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? Yes sir. Yes, sir. सो नाउ तो अभी तक के दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया था, और इन बोथ दोज एग्जांपल्स वी हैव ऑलरेडी गिवन द रिग्रेशन लाइंस. अब एक ऐसा क्वेश्चन हम देखने वाले जहां पे रिग्रेशन लाइंस आपको कैलकुलेट करने फ्रॉम द डाटा. ठीक है, सो obtain the regression lines for the following data. So x is your one set or one data, y is your another set or another data, and from this two values or two set of values we have to find the regression lines, or it simply means we have to find the relation between x and y. Okay, so in solution just write down all the equation, all the formulas. Regression line y on x is this, regression line x on y is this. Okay, चलो ये कंप्लीट कर लेते हैं. by x is this. Okay, and x on y is this, and bxy is equal to covariance upon sigma y square. Okay, straightforward formulas are there. Okay, now if I write the formula of covariance of xy, which is this 1 by n summation xi yi minus x bar y bar, and sigma x square and sigma y square is this. Okay, now you tell me to complete or to find the value of covariance, standard deviation of x and standard deviation of y. आपको क्या क्या कॉलम यहाँ पे कंसिडर करने. एक तो 2 कॉलम तो फिक्स है x एंड y के कॉलम. इसके आगे आपको क्या क्या कंसिडर करना होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोवेरिएंस सिग्मा x स्क्वायर एंड सिग्मा y स्क्वायर. बोलो. पहले तो आपको क्या कैलकुलेट करना है मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको x का कॉलम चाहिए, वो ऑलरेडी है वहां पे. नेक्स्ट कैलकुलेट करना है y बार, उसके लिए आपको y का कॉलम चाहिए, वो भी ऑलरेडी है वहां पे. टेल मी द नेक्स्ट कॉलम और नेक्स्ट कैलकुलेशन कोवेरिएंस करना. Yes, sir. व्हाट इज द कॉलम फॉर कोवेरिएंस ऑफ xy?
Sorry, your voice is breaking. Tell me a column to calculate covariance of x y. कौन सा कॉलम कंसिडर करना होगा? बोलो. अरे X to Y. एक्स वाई. ओके. नेक्स्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए वाई स्क्वायर. तो ये हमें कैलकुलेशन करना है और इसके लिए आपको मैंने एक ट्रिक भी दी है. आप क्विकली कैलसी में ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. सो जस्ट लेट मी शो यू दैट पार्ट. एक्स एंड वाई का कॉलम, फिर यहाँ से एक्स बार कैलकुलेट कर लेते. समीशन ऑफ एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 6. वाई बार का कॉलम समीशन ऑफ वाई 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन which is 8. Now to calculate covariance, consider the column xy. So from that you will get, and also next x square, next y square, and from this data you will get covariance which is equal to 1 by summation xi y minus x bar y bar. So 1 by 5 total number of observation multiplied by 214 summation of xi y minus product of the mean. So that value is minus 5.2 है ना. Next sigma x square calculate कर लेते हैं which is 1 by n summation xi square. So 220 minus mean x whole square. So that gives you 8 है ना. सिग्मा एक्स स्क्वायर 8. मैंने इसका रूट नहीं कैलकुलेट किया, आपको बाद में समझ में आ जाएगा. बट इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट सिग्मा एक्स आल्सो. सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4. सो नाउ इफ आई राइट द फॉर्मूला बी वाई एक्स which is equal to covariance upon sigma x square, क्योंकि फॉर्मूले में ही स्क्वायर था इसलिए मैंने फिर से इसका अंडर रूट नहीं लिया. ओके. सो covariance upon sigma x square that is minus 5.2 upon 8 which is equal to minus 0.65. And also you can calculate the another regression coefficient bxy which is equal to covariance upon sigma y square that is minus 5.2 upon 4 which is minus 1.3. So यही से आपको समझ में आने वाला है कि आपका आर क्या आने वाला है, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव. व्हाट इज द फाइनल वैल्यू आर? फाइनल वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, बिकॉज बोथ दिस कोएफिशिएंट्स आर नेगेटिव. तो जो भी आपका आंसर होगा वो नेगेटिव ही आने वाला है. ठीक है. सो लेट अस कैलकुलेट द फाइनल. सॉरी आर, हाँ अभी यहाँ पे सॉरी ओके आर है, उस केस में नेगेटिव आएगा, दैट इज ट्रू. बट हियर वी हैव टू फाइंड द रिग्रेशन लाइंस. ओके. So let me write the first formula, regression line y on x है ना. फॉर्मूला आपको पता ही है, y minus y bar b by x x minus x bar as it is. बस वैल्यूज पुट करने. y bar की वैल्यू आपके पास है, b by x आपने अभी कैलकुलेट किया है ना. नाउ जस्ट डू दिस सिंप्लीफिकेशन. ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करके -8 को राइट साइड में शिफ्ट करो. सो दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन. यहाँ तक आपको करना है एग्जाम में. ठीक है. सो मतलब लास्ट फॉर्म आपका ऐसे ही दिखाई देना चाहिए, b y x प्लस c है ना. इस फॉर्म में आना चाहिए. ओके. सिमिलरली कैलकुलेट रिग्रेशन लाइन x ऑन y है ना. x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार. जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज हियर एंड डू द सिंप्लीफिकेशन. शिफ्ट दिस -6 ऑन RHS. यू विल गेट दैट वैल्यू एज x इज इक्वल टू minus 1.3 y plus 16.4. ओके. सो इट लुक लाइक x इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई प्लस सी. So these are the final regression lines. Okay, इतना ही था क्वेश्चन. आपको regression lines ही कैलकुलेट करने थे, उसके आगे उन्होंने नहीं पूछा था. ठीक है. चेक द कैलकुलेशन क्वेश्चन अगेन. आपको बस regression lines ही कैलकुलेट करने थे. ओके. ऑब्टेन ओनली regression lines. ठीक है. तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है. एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन सिमिलर टू दिस. ये ऑब्टेन रिग्रेशन लाइंस फॉर द फॉलोइंग डाटा. तो यहां तक तो सेम पार्ट है जो अभी हमने किया था. ठीक है. सेम कैलकुलेशन करने, बट उसके आगे उन्होंने क्या दिया है विच इज इंपॉर्टेंट. एस्टिमेट y, मतलब y कैलकुलेट करो फॉर दिस x एंड एस्टिमेट x फॉर दिस y. मुझे बस इतना बोलो, टू फाइंड y हमें कौन सा इक्वेशन करना है, इक्वेशन यूज करना है. टू फाइंड x हमें कौन सा इक्वेशन यूज करना है, बोलो. y कैसे कैलकुलेट करोगे आप? How you find y? How you find y for this x? For x is equal to 14.5. ये कहां से कैलकुलेट करने वाले हो आप? From which equation you have to find y? Yes. There are two equations. Regression lines में दो इक्वेशन आते हैं. One is y on x.
सेकंड इज x ऑन y। इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन आप यूज करने वाले हो टू फाइंड y? दिस इज माय Y क्वेश्चन। on X. y on x। ओके, गलती से भी x on y का यूज नहीं करना है, वहां से भी आंसर मिलने वाला है, बट अगर आप यूज करते हो विच इज टोटली रॉन्ग। ओके, एंड x on y से आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यही एक स्टेटमेंट है जिसका यूज करके हमने एक्चुअली दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था, है ना। जनरली y on x, दिस इक्वेशन इज यूज टू फाइंड y, है ना, एंड x on y इक्वेशन इज यूज टू फाइंड x। ठीक है, ये बस याद रखो, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं वो रिपीट पार्ट, सेम पार्ट नहीं रिपीट करने वाला हूँ। फॉर्मूले लिखना है, फिर x एंड y का कॉलम, मीन कैलकुलेट करो, x बार का मीन, y बार मीन, है ना। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस किया था। ओके, एक्स वाई कॉलम कंसिडर करो, एक्स स्क्वायर कॉलम कंसिडर करो, वाई स्क्वायर कॉलम कंसिडर करो, यहाँ से आपको ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे। सो कोवेरिएंस इज इक्वल टू this, okay, then sigma x square is equal to covariance is this, sigma x square equal to this, sigma y square equal to this, similar type है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। ओके, हाँ, एंड नाउ यू कैन राइट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। सो ये हो गई फर्स्ट वैल्यू एंड बी एक्स वाई इज दिस सेकंड वैल्यू। सो डन। सो वी हैव कैलकुलेटेड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स bxy and byx. Now just put all these values in the regression lines. So the regression line y on x is this, y bar की value put करो, byx की value put करो, x bar की value put करो. So that gives me this. Okay, and simplify this, है ना, multiply in bracket and shift this minus y bar on RHS. So that gives you this. So this is the regression line y on x, और इसका आपको यूज करना है टू फाइंड y। ठीक है, सो इमीडिएटली पुट x इज इक्वल टू 14.5 इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग y। दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट केस। ओके, यह आपको एमसीक्यू में भी आने वाला है। मैं आपको रिग्रेशन लाइन दूंगा डायरेक्टली, these are two regression lines, okay, and you have to find y when x is equal to 14.5। मैं इसको और ट्विस्ट कर सकता हूं, मैं आपको रैंडम ऐसे दूंगा, 3x plus y equal to 10, 4x minus 10y is equal to 20। These two are the regression lines, और मेरा क्वेश्चन सेम है। आप कैसे करोगे? Can anyone explain me? इस केस में कैसे आप करोगे? These are your two given regression lines, और उसके बाद आपको मैंने क्या पूछा है? Find y when x is equal to 14.5। कैसे करोगे बोलो, बोलो। So we will first verify which of these two lines is y on x and x on y. Yes. And then we will move forward. गुड, ठीक है। तो ये करने के लिए पहले आपको ये देखना होगा इन दोनों में से कौन सी लाइन x ऑन y की है और कौन सी लाइन y ऑन x की है। तो जो ट्रिक मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, r कैलकुलेट करना है। जहां पे r आपका -1 एंड 1 के रेंज में नहीं आता है, दैट केस इज रॉन्ग। ओके, एंड वहां से आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में से कौन सी लाइन आपकी x ऑन y की है और कौन सी लाइन आपकी y ऑन x की है। y ऑन x लाइन का यूज करके ही आपको फिर ये कैलकुलेट करना है। तो ये आपको 2 और 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, सो बी रेडी फॉर दिस। तो हर एक थ्योरी क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट करके ही आपको आने वाला। तो अगर आपकी थ्योरी परफेक्ट है ना, तो आपको एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं आने वाले। ठीक है, सो कंसेप्ट क्लियर रखो। एंड इन सिमिलर वे कैलकुलेट x ऑन y, दिस इज द फॉर्मूला, पुट ऑल द वैल्यूज हियर and do the simplification. You will get x is equal to this 1.0747y minus 2.1425, and now just put, क्योंकि this equation is used to calculate x, तो y equal to 29.5 इसमें पुट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, this is the final value of x। okay, so from this question, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या याद रखना है? when you want to find y, use y on x equation. When you want to find x, use x on y equation. Regression line x on y equation. Okay, so this is all about regression. इसके बाद कुछ नहीं आने वाला। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें। In one question we have already given the regression lines, and from that you have to find the coefficient of correlation, mean values, and standard deviation. That is the first part. In second case, from a data we have to find the regression lines. Okay, and also we have to find y when x is given, we have to find x when y is given. Okay, these are the possible questions on regression lines. Okay. So this topic. Okay,
I think in your syllabus, yeah. So let me take some MCQs on that, on this. ये लिए थे क्या कुछ MCQs हमने लिए थे या नहीं? I don't remember. Yes or no? No, sir. Okay, ठीक है. So कल से रखो आप साथ में, क्विकली MCQs कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है. Yes. Two regression coefficients are given. Regression coefficients means bxy and byx. आप रैंडम दे सकते हो. So assume bxy is 0.16 and byx is 4. Okay. Then the r. What is r? क्या है फॉर्मूला? दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आने वाला है. Yes. C. bxy into byx. Option C. Okay. Next. Regression coefficients are given. Same question. Then the coefficient of correlation. बोलो. Huh? Both are negative, so answer must be negative. बोलो, which answer is correct? So for Option the E. first one, option D should come, right? D है क्या? Sorry. ठीक है, आप कैलकुलेशन करो बस. करेक्ट. हाँ. Yes. Now tell me for second. माइनस आने वाला तो ये कभी करेक्ट नहीं होगा, ये भी कभी करेक्ट नहीं होगा. इन दोनों में से आंसर करेक्ट है. बोलो. ए ना? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y on x. बोलो. स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y on x का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द नोटेशन फॉर स्लोप ऑफ द byx ना? हाँ. यस, टेल मी द फॉर्मूला देन. B. b सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. स्लोप ऑफ x on y. A. A. The lines of regression y on x. उन्होंने स्पेसिफिकली बोला दिस इज योर y on x. ये उन्होंने दिया है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है. दिस इज x on y. ये इजी क्वेश्चन इसलिए ऐसा दिया. द मीन वैल्यूज ऑफ x and y. वैसे जरूरत नहीं थी इसके लिए. मीन वैल्यूज ये ऑलरेडी हमने किया है कंप्लीट. Option C. ऑप्शन सी ना. ठीक है. जस्ट put x equal to x bar and y equal to y bar. Solve this simultaneous equation on calculator. Two lines of regression are given. Mean values of x and y are given. Find lambda and mu. So क्या पता है आपको? 9x bar plus y bar is equal to lambda, as the mean value satisfies the regression lines, and 4x bar plus y bar is equal to mu. So which option is correct? A. A. ठीक है. नेक्स्ट. आप बोलो क्या करना. तब तक मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ, ये मैं शेयर करता हूँ आपके साथ. हाँ बोलो. द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन y on x. यहाँ पे भी स्पेसिफिकली पूछा. दिस इज योर y on x एंड दिस इज योर x on y. गिवन है आपको, वो कैलकुलेट नहीं करना है. या अच्छे से रीड करो क्वेश्चन कि वेदर रिग्रेशन लाइंस आर गिवन स्पेसिफिकली और नॉट. इफ इट इज गिवन स्पेसिफिकली तो आपका उतना टाइम सेव हो जाएगा. अगर नहीं गिवन है तो आपको देखना होगा कि कौन सी y on x की है और कौन सी x on y की. सो टेल मी r. तो r कैलकुलेट करने के लिए आपको y on x से, y on x लाइन से क्या लिखना होगा? y इक्वल टू लिखना होगा. सो y इक्वल टू वॉट? y on x लाइन से y लिखो. तो व्हाट इज y? टेल मी दैट वैल्यू. y is equal to what? 8 by 10x. 10. 10x plus 66 by 10. And यहाँ से आपको मिल जाएगा b by x, which is equal to 8 by 10. Next, calculate x from a second equation, which is equal to 18 by 14, 18 by 40y plus 214 by 40. यहाँ से आपको मिल जाएगा bx y, which is equal to 18 by 40. So tell me r. या भी हमने किया है, सेम क्वेश्चन है तो 0.6 ही होगा. करेक्ट ना? Yes, sir. या भी का ही क्वेश्चन है. यस. हाँ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. ये आपको प्रॉपर करना है. नाउ डू इट. आई विल गिव यू सम टाइम. आप करो कैलकुलेट और मुझे डायरेक्टली आंसर बोलो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ.
I want to check whether you are actually getting this topic or not. Do it. Tell me directly final R. इसमें यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से फोकस करना होगा, बाकी टॉपिक्स तो जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस ही है. यस कंसिडर 2 केसेस एंड चेक करो कि कौन से केसेस से करेक्ट आंसर मिल रहा है और टेल मी दैट फाइनल वैल्यू. व्हाट इज आर? करो जल्दी, नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट भी करना है. जो पहली वैल्यू आती है ना केस 1 की, उसको रिवर्स करके सेकंड केस होती है. तो अगर आप स्मार्टली जाते हो तो इतना टाइम भी नहीं लगता, दोनों केसेस लिखने की जरूरत भी नहीं है. उसको रिवर्स करके वैल्यूज लिखने हैं, बस स्लोप को रिवर्स करना है. दैट बिकम द सेकंड केस. यस Option C. यस आई गॉट वन आंसर. अदर स्टूडेंट्स? अदर स्टूडेंट बोलो क्या आंसर है. C. सी. ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट केस. पहले y फर्स्ट लाइन को y ऑन x करो, सेकंड x को x ऑन y करो. तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? byx इज इक्वल टू -9 एंड bxy इज इक्वल टू -1/4. सो इफ आई कैलकुलेट r इन दिस केस, वो नेगेटिव होगा. व्हाट इज r इन दिस केस? क्या है r? मैं आपको फास्ट में बोलता हूँ, कोई भी एक केस लिखो तो भी आपको समझ में आता है. व्हाट इज r फ्रॉम दिस केस? -1.5. सॉरी, योर वॉइस इज -1.5. -1.5. ओके, सो दिस केस इज रॉन्ग. आपको यहीं पे समझ में आ रहा है कि ये केस रॉन्ग ही है. तो आपको बस क्या करना है, जब आप नेक्स्ट केस लिखते हो ना, ओके, आप बस देखो पॉजिटिव है निगेटिव. नेक्स्ट केस में यहाँ पे x इक्वल टू आने वाला है. जब आप x इक्वल टू लिखते हो, माइनस साइन चाहिए था ना वहां पे, शायद माइनस साइन चाहिए था ना. Yes, sir. हाँ, सो द माइनस मस्ट बी देयर. ओके, दैट इज अ मिस्टेक. जब आप नेक्स्ट केस लिखते हो तो नेक्स्ट केस में भी ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव आने वाले हैं. आप चेक करो नहीं, यहाँ पे जब आप इसको x इक्वल टू लिखते हो तो वहां माइनस आने वाला है, तो माइनस तो आ ही जाएगा और इसको ही रिवर्स करना है. तो 9 की जगह पे अभी क्या आ जाएगा? 9 की जगह पे अभी क्या आ जाएगा? 1/9. 1/9 ना, उसको रिवर्स करना है बस. एंड 1/4 की जगह पे 4. नाउ कैलकुलेट दिस. सो 4/9. -0.67. हाँ, 0 -0.66 समथिंग. ओके, अभी मुझे नहीं पता वो क्या है, फिर भी एक बार चेक करता हूँ. 0.663. 7 करेक्ट बोला था आपका, करेक्ट है. तो ये रॉन्ग ही है वैसे, ये 7 ही चाहिए था. इतना कभी डिफर नहीं आता. ठीक है, तो इसलिए उतना टाइम आपका सेव हो जाएगा MCQ में. उसी केस को रिवर्स करना है, बट उतनी केयर करो कि साइन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या निगेटिव लेना है, वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो वो भी आपको देख के भी समझ में आ सकता है. ठीक है, इट इज अप टू यू कि आप कैसे करते हो ये, बट ये फास्ट भी होगा करने का. यस, इसमें भी वही किया है उन्होंने. रिग्रेशन एंड x ऑन y. ओके, स्पेसिफिकली दिया है दिस इज x ऑन y, दिस इज y ऑन x. ठीक है, वेरिएंस ऑफ x इज गिवन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कैलकुलेट करना है. मुझे बस फॉर्मूला बोलो, अभी कैलकुलेशन नहीं करने वाले. जस्ट टेल मी द फॉर्मूला. कौन से फॉर्मूले से आपको ये मिलने वाला है? वेरिएंस ऑफ x इज गिवन मतलब सिग्मा x इज गिवन विच इज 3. यस, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा y कैलकुलेट करना है. कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? रिग्रेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? रिग्रेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? R equals to BYX upon हाँ, तो into कोई भी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट यूज करो. ओके, एनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो अगर मैं BXY कंसिडर करता हूं विच इज R इंटू सिग्मा x अपॉन सिग्मा y.
ओके, बी एक्स वाई आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपके पास एक्स ऑन वाई गिवन है, आर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला ऊपर जैसे किया था वैसे, सिग्मा एक्स की भी गिवन है, सिग्मा वाई आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कैन यू टेल मी डायरेक्ट वैल्यूज, टेल मी बी एक्स वाई, एक्स ऑन वाई में वाई का कोएफिशिएंट बोलो, टेल मी डायरेक्टली, क्या आएगा स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या है, 18 बाय 40. हाँ गुड। अभी आर कैलकुलेट करना होगा, डू इट ऑन कैलकुलेटर। अभी एमसीक्यू में इतना वेट नहीं करना, जंप करना है। एक होता है 18/40 एक्स ऑन वाई में, इसको y इक्वल टू लिखो और x का कोएफिशिएंट बोलो। y इक्वल टू लिखने के बाद x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 8/10 ना। Yes. हाँ, सो टेल मी दैट वैल्यू। करके 0.6. 0.6, ओके। तो ये वैल्यू क्या है, 0.6 से सिग्मा एक्स गिवन है 3, सिग्मा वाई कैलकुलेट करना है। ये अप्रोच चाहिए आपका एमसीक्यू में। डोंट वेस्ट टाइम ऑन इन राइटिंग। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, तो आपको डायरेक्टली जंप करके लिखना है, जो सामने है उसको देख के आप अंदर ही कैलकुलेट करके डायरेक्टली आर लिखने की कोशिश करो, दैट सेव्स योर टाइम। ओके, क्योंकि एमटी में और ईटी में ओके जो मेन फैक्टर होगा वो टाइम ही होगा। टाइम ही मतलब अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट भी यहाँ वहाँ करते हो या यहाँ वहाँ कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट करते हो, आपका 100% इक्वेशन पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक यूज करो। द रिग्रेशन लाइन y on x is given, okay, x on y is given, okay, variance of x is given, standard deviation same question है, so let me skip this. Next, the coefficient of correlation between the variable means r is given, okay, sigma x is given, sigma y is given, x bar y bar is given. The lines of regression, bolo which option is correct. What are the lines of regression? Y minus y bar is equal to b by x into x minus x bar, this is the first line, and x minus x bar is equal to bxy into x minus x bar, this is the second equation. बोलो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अभी by(x) and bxy कैलकुलेट करने होंगे आपको वहां पे, ठीक है। कैन यू डू दिस, करने की जरूरत है क्या, by(x) कैलकुलेट करो r इंटू सिग्मा अपन सिग्मा x एंड bxy कैलकुलेट करो r इंटू सिग्मा x अपन सिग्मा y, बाकी सारी चीजें गिवन ही है, y बार गिवन है, x बार गिवन है, ये कैलकुलेट करने के लिए भी ऑलमोस्ट सारी चीजें गिवन है। सो कैन यू डू दिस, यस Yes, sir. या आप सी कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 1 and 12 में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन है, x बार गिवन, y बार गिवन, सिग्मा x इज गिवन, सिग्मा y इज गिवन। वे ऑफ मतलब बस वे ऑफ राइटिंग अलग है, बाकी सेम ऊपर का ही क्वेश्चन है, एंड r इज गिवन। रिग्रेशन लाइंस को लिखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज bxy by(x) इज गिवन, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज गिवन, कोएफिशिएंट ऑफ r आपको एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। तो व्हाट इज r तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ bxy इंटू by(x), एंड फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, bxy का फॉर्मूला यूज करो, r इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इतना बस याद रखो, स्टैंडर्ड डेविएशन रिग्रेशन में रिग्रेशन कोएफिशिएंट से ही सॉल्व होने वाला है, मतलब bxy और by(x) से। हाँ, और यहाँ पे क्या गिवन है, x बार इज गिवन, y बार इज गिवन, रिग्रेशन कोएफिशिएंट by(x) इज गिवन बाय यूजिंग द रिग्रेशन लाइन y on x। y की वैल्यू कैलकुलेट करनी व्हेन x इज 60, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। y on x का फॉर्मूला आपको पता ही है, ठीक है। इसमें आपको by(x) की वैल्यू गिवन है ना, व्हाट इज by(x) -1.5, x बार इज गिवन 53.2, y बार इज गिवन 27.9, और आपको y कैलकुलेट करना है व्हेन x इज इक्वल टू 60। सारे वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, यू विल गेट y। यस, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। Yes, sir. सेम टाइप का वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा, ठीक है।
सो आई विल शेयर दिस पीपीटी, ऑलरेडी शेयर की होगी, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। या लास्ट 5 मिनट में कुछ इंस्ट्रक्शन है तो वो मैं दे देता हूँ जस्ट रिमाइंडर में। या सो नाउ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस स्टैटिस्टिक्स यूनिट विच इज कर्व फिटिंग, है ना। एंड फिर जो हमारा नेक्स्ट यूनिट होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक कर्व फिटिंग एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू रिग्रेशन टॉपिक, ओके। और ये जनरली आप ये टॉपिक का यूज आपने किया होगा, है ना, मतलब 3rd 4th स्टैंडर्ड में भी आपने ये किया है ना। आपके पास अगर डाटा है तो डाटा से ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट अ कर्व फिटिंग, ओके। अभी कर्व फिटिंग, तो फिटिंग जो वर्ड है, ठीक है, उसका यूज बेसिकली क्या है, आपको वो जो गिवन डाटा है वो एक पर्टिकुलर कर्व से फिट करना है, ठीक है। सो दैट कर्व मे बी अ स्ट्रेट लाइन, दैट कर्व may be exponential e raised to x, that curve may be a logarithmic function, there are many ways, that curve may be a polynomial function of degree 1, polynomial function of degree 2, polynomial function of degree 3 and so on. So at the end we have to fit that given data. Fitting a given data is simply means find a relation between these two variable. मैं आपको एग्जांपल से मुझे क्लियर करने वाला हूं, बट इतना याद रखो यहाँ पे क्या होने वाला है, आपके पास एक डाटा है, अगर आप वो डाटा ड्रॉ भी करते हो यहाँ पे, सपोज दिस आर द पॉइंट्स, डाटा मतलब पॉइंट्स 2D में, ठीक है। सो व्हाट इज द लाइन विच फिट दिस डाटा, टेल मी अ लाइन विच फिट दिस डाटा, इट इज लुक लाइक दिस, करेक्ट है, करेक्ट और नॉट। या अगर आप कोई और एग्जांपल लेते हो जिसमें सपोज ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, so tell me a line which fit this given data, so that look like this, करेक्ट है। अभी ये स्ट्रेट लाइन में कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। तो ये जो चीज है, ओके, हाउ यू कैन फिट दिस गिवन डाटा, सी अगर आप फिट करते हो ना तो इसका इक्वेशन आपके पास आ जाएगा, इसका इक्वेशन अगर आपके पास आ जाता है, सो दैट इज नथिंग बट रिलेशन। वही बोल रहा हूँ कि कर्व फिटिंग इज सिंपली मींस आइडेंटिफाई रिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल। इतना तो समझ में आ रहा है पहले, Yes, sir. ओके। हाँ, अभी आपको ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द वेज, ओके, व्हाट आर द वेज बाय विच यू कैन फिट दैट गिवन डाटा, ठीक है। सो एज फार एज अवर सिलेबस इज कंसर्न विल फोकस ऑन ओनली पॉलिनोमियल फिटिंग, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपके पास एक डाटा आ जाता है विच वी जनरली कॉल्ड एज एक्स आई एंड वाई आई, मतलब अगर आप टेम्परेचर एंड टाइम का एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हो, है ना, टेम्परेचर एंड टाइम का एक्सपेरिमेंट कंसिडर करते हो, तो टेम्परेचर इज योर एक्स आई, सॉरी टाइम इज योर एक्स आई एंड टेम्परेचर इज योर वाई आई। तो मैंने मतलब जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप परफॉर्म करते हो तो फॉर सम इनपुट यू हैव सम आउटपुट, दैट डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई इंटू वाई आई, एक्स आई इज योर इनपुट, वाई आई इज योर आउटपुट, ठीक है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कर्व फिटिंग? Curve fitting is actually the process of constructing a curve which has a best fit to the above data. See, wording से confusion नहीं होना चाहिए आपका. Best fit means what? आप उस डाटा का एक इक्वेशन कैलकुलेट करने वाले हो, रिलेशन कैलकुलेट करने वाले हो, है ना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास एक रिलेशन आ जाता है y माइनस वाई बार इक्वल टू, अगर आप ये लाइन ड्रॉ करते हो ना तो आपको समझ में आएगा ज्यादातर पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर थे, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर लाई ऑन दैट कर्व, ठीक है। तो यही रोल है कर्व फिटिंग का। सो कर्व फिटिंग इज एक्चुअली प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कर्व, ओके, व्हिच हैज अ बेस्ट फिट टू द गिवन डाटा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। यूजुअली दिस कर्व्स आर स्ट्रेट लाइन, दिस इज इन जनरल पैराबोला ऑफ सेकंड डिग्री एंड पैराबोला ऑफ थर्ड डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें इन्हीं लाइन पे अभी फोकस करना है। देयर आर मेनी अदर वेज, you can fit by exponential line, you can fit by logarithmic line, okay, you can check this part on excel also, okay, it is ready made available on excel। कर्व फिटिंग का सारा पार्ट आपका एक्सेल पे अवेलेबल है, आपको बस x कॉलम में y x के वैल्यूज पुट करने, y कॉलम में y के वैल्यूज पुट करने, क्लिक on that button, fit by linear, fit by exponential, fit by logarithmic, you will get that curve fitting equation or you will get that relation directly, ठीक है। If time is there, I will show this part in tutorial session. Tutorial session में ये सारे जो भी पूरा स्टैटिस्टिक है ना, सारा मैं आपको एक्सेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। एक ट्यूटोरियल में हम सेशन लेते हैं अभी के ट्यूटोरियल में, ठीक है। सो
as per our syllabus is concerned, first we will try to fit given data by using straight line. ठीक है, अभी आप बोलोगे कि सर स्ट्रेट लाइन से क्यों करना है? सी ये these are the ways you can fit that given data by a straight line. You can fit that given data by parabola of second degree. Parabola मतलब it's simply a polynomial you can treat. Okay, polynomial of first degree is what? This is what? Polynomial of first degree. This is what? Polynomial of second degree. This is what? A polynomial of third degree. ax square plus bx square plus cx plus d. ठीक है, so these are the ways by which you can fit that given data. Okay. अभी ये मेरा ओपन क्वेश्चन है, हाउ यू एक्चुअली आइडेंटिफाई, और ये आपको कैसे समझ में आएगा कि विच कर्व गिव्स मी अ बेस्ट फिट. यस, ये आपको कैसे, इसका ग्राफ आप प्लॉट करने वाले हो एक्सेल में. तो इसको विजुअलाइज करना है प्लॉटिंग से. एक्सेल में आप रेडीमेड ये सारी चीजें चेंज कर सकते हो. यू कैन फिट बाय पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री से एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपको क्या देखना पड़ता है? ओके, कौन से ग्राफ में, मतलब अगर आपने सेम डाटा के लिए अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन से भी आपने अगर उसको फिट किया है ना, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ. ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट ठीक है, जस्ट 1 मिनट. मुझे वैसा डाटा कंसिडर करने दो. ठीक है, सो इफ आई कंसिडर स्ट्रेट लाइन दैट मे बी लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, मतलब मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. एक और मैं लेता हूं कर्व, दिस इज 1 फीट. इसको आप एज्यूम करो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. एक और फिट में लेने वाला हूं, सेकंड, विच इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अभी ये इसका ये ओरिजिन से नहीं पास हो रही है, बट यू कैन ट्रीट दिस एक वाई -2 समथिंग आप ले सकते हो, है ना. ठीक है, बट यू कैन ट्रीट दिस या ओरिजिन, हाँ आप बस एज्यूम करो. ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक कर्व है. सो नाउ टेल मी बाय विच कर्व यू विल गेट अ बेस्ट फिट. कौन से कर्व से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वहां पे मुझे बेस्ट फिट मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन से, पैराबोला से? हाँ सॉरी, पैराबोला से. Because you can find most of the points are lies on the curve y equal to x square. तो ये आपको प्लॉट करके ही समझ में आ सकता है कि कौन से कर्व से आपको बेस्ट फिट मिलेगा. इसलिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो. दिस इज अप टू थर्ड डिग्री, अप टू फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन. ओके, जितनी डिग्री आप इंक्रीज करते हो उतना फिट आपको प्रॉपर मिलते जाएगा. यू विल गेट अ प्रॉपर फिट. ओके, और मोस्ट एक्यूरेट फिट ऑफ दैट गिवन डाटा. ठीक है, और ये एक्सेल में आपको दिखाई देता है सामने. आपको अभी चलो मैन्युअली ये सब कुछ करना डिफिकल्ट है, बट एक्सेल में आप डायरेक्टली 1 क्लिक पे आपको वो ग्राफ भी समझ में आएगा, वो लाइन भी दिखाई देगी जो फिट, जिससे आप फिट करने वाले हो. ठीक है, ओके. सो एज फार एज अवर सिलेबस इज कंसर्न, हियर वी विल जस्ट आइडेंटिफाई दिस लाइन, अ लाइन बाय विच यू आर गोइंग टू फिट दैट गिवन डाटा. अभी कैसे करना है सब कुछ, लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्स्ट. ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है वो क्या है? वी विल ट्राई टू फिट गिवन डाटा बाय स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस बी. कैसे करना है? आपके पास डाटा गिवन होगा, इस क्वेश्चन में आपके पास x के कुछ वैल्यूज गिवन होंगे, y के कुछ वैल्यूज गिवन होंगे. ये आप दिमाग में रखो, दिस इज गिवन. सो फ्रॉम दैट you have to formulate these two equation. Okay, these are generally called as normal equations. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली आपको पहले क्या करना है, दिस योर स्टेप 1, फॉर्मुलेट द नॉर्मल इक्वेशंस. ओके, ये भी याद रखने में सिंपल है. क्या करना है? फर्स्ट केस में सबका समेशन लेना है, समेशन ऑफ y इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ x प्लस. नाउ व्हाट इज द समेशन ऑफ b? आपको b कितने बार ऐड करना है? n टाइम्स ऐड करना है. तो क्या आंसर देगा वो? n टाइम्स b. करेक्ट और नॉट? करेक्ट और नॉट? Assume that there are n observations, जो मैंने स्टार्टिंग में ही लिया था. There are n observation. फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होती है आपकी? टेक समीशन. ठीक है, सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड समीशन ऑफ y i runs from 1 to n इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, समीशन के बाहर आ जाएगा, समीशन ऑफ x i runs from 1 to n एंड b समीशन ऑफ
I runs from 1 to n. But what is the value of summation of b where I runs from 1 to n? क्या आंसर होगा इसका? b को कितने बार ऐड करना है? n टाइम्स ऐड करना है. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? NB. nb. क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये पहला इक्वेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? इट सिंपली मीन्स टेक द समेशन. नहीं तो फिर याद रखना होगा फॉर्मूला. अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा. इज दिस क्लियर? पहला इक्वेशन. सारे कर्व फिटिंग के केसेस में नॉर्मल इक्वेशन कैलकुलेट करते समय व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन? जस्ट टेक द समेशन. इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन. सारे केसेस में सेकंड इक्वेशन आपका क्या होता है? आपको पहले x से मल्टीप्लाई करना है. अभी आप बोलोगे x से क्यों मल्टीप्लाई करना है? अगर लेफ्ट साइड में y है ना तो x से मल्टीप्लाई करो. अगर लेफ्ट साइड में x है तो y से मल्टीप्लाई करो. अदर वेरिएबल. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x एंड टेक समेशन. ये इन जनरल या तो ये रूल ही है. अभी यहाँ पे कहीं पर रिटर्न रूल नहीं है, बट बाय दिस रूल यू कैन रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशन. तो अभी सेकंड केस में सेकंड इक्वेशन कैसे मिलने वाला है ये इसका प्रूफ में देता हूं. इसको x से मल्टीप्लाई करो. will take xy x square plus bx. Now take the summation. So summation of xy I runs from 1 to n. एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. समेशन ऑफ xi स्क्वायर I runs from 1 to n. b भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा. समेशन ऑफ xi I runs from 1 to n. सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो समेशन ऑफ xi मैं बस वो ये नहीं लिख रहा हूँ I runs from 1 to n वो पार्ट नहीं लिख रहा हूँ. a इंटू xi स्क्वायर प्लस b इंटू समेशन ऑफ x. समझ में आ रही है? सेकंड स्टेप. What is your second step? What is your second step? Multiply that equation, given equation by x and then take the summation. Is this clear? Yes, sir. अभी आगे का पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, ठीक है. दिस इज द केस व्हेन वी हैव दिस इक्वेशन. अभी इसके जगह पे अगर ये इक्वेशन आ जाता है सो इन दैट केस व्हाट आर योर, ये आपको 1 मार्क के लिए आने वाला एग्जाम में. नॉर्मल इक्वेशंस ऑफ दिस. ओके ओके. सो नाउ यू टेल मी व्हाट आर द नॉर्मल इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन. सपोज ये आपका दिस इज वन मोर वे टू और दिस इज वन मोर इक्वेशन बाय विच यू कैन फिट दैट गिवन डाटा. मैंने आपको सारे इन जनरल इक्वेशन के लिए बोला है. हमेशा क्या करना है? हाउ यू आइडेंटिफाई नॉर्मल इक्वेशन? पहले एज इट इज समेशन लेना है. नेक्स्ट में x से मल्टीप्लाई करना है. अगर y गिवन है तो y गिवन है तो, या x गिवन है तो y से मल्टीप्लाई करना है. लाइक दैट. सो टेल मी द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन. बोलो जल्दी. टेल मी द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन. क्या लिखना है मुझे? जस्ट टेक द समेशन. यस, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू समेशन ऑफ y प्लस व्हाट? प्लस व्हाट? यस, plus what? NB. NB. Tell me the second equation. We'll stop after this. Just tell me the second equation. Summation xy Next. equals to a summation y square Okay. plus b times summation वाह. y. क्योंकि x लेफ्ट साइड में था, आप इसको पहले y से मल्टीप्लाई करोगे. y से मल्टीप्लाई करके आपको फिर समेशन लेना है. ठीक है. सो दिस बिकम द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ सेकंड. अभी आपका ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द रोल ऑफ दिस नॉर्मल इक्वेशंस. ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस नॉर्मल इक्वेशन? सो दैट आई विल टेक इन अ नेक्स्ट लेक्चर. इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं एंड विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन अ नेक्स्ट सेशन. इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका पूरा डिटेलिंग समझ में आ जाएगा. Okay, we'll stop here today.